हे गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना। So we have a very important announcement to make. We are starting with live online classes for Indian Constitution. हर रोज़ 1 hour की क्लास होगी जिसके अंदर हम complete करेंगे Indian Constitution. It would be a really nice class because we'll be understanding everything about Indian Constitution from the perspective of law entrance exam. So please, if you are interested, check the description box. You'll find more information about it. In today's video, we are going to talk about previous year questions of Indian Constitution from Punjab University, Banaras Hindu University, Delhi University, Maharashtra CET. So this is a very important video and ये part 1 है, इसके और भी parts होंगे, तो please don't forget to subscribe to the channel. Who is the Chief Justice of India? It is Honorable Mr. Justice H.J. Kania, Honorable Miss Justice Meera Fatima Bibi, Honorable Miss Justice Leela Seth, or Honorable Mr. Justice S.A. Bobde. Answer is D. Honorable Mr. Justice S.A. Bobde. He is the 47th Chief Justice of India and he will hold office till April 23rd, 2021, and his full name is Sharad Arvind Bobde. Justice H.J. Kania was the first Chief Justice of Supreme Court. Justice Meera Fatima Bibi was the first woman judge of the Supreme Court. Justice Leela Seth was the first woman High Court Chief Justice. So all of these firsts are very, very important. Please make a note of this and grab your pen and paper, notepads and start making notes. Text of the preamble of the Constitution of India aims to secure fundamental duties to the citizen of India, dignity of the individual and unity and integrity of the nation, fundamental rights to all citizens of all individuals, security of service to government servants. Now you have to choose the answer which is closely related, right? कहीं ना कहीं हमारी जो preamble है वो इशारा करती है fundamental rights की तरफ भी, but जो close answer है वो है answer is B, dignity of the individual, unity and integrity of the nation. Okay. Minimum age required to vote in India is 18 years. Earlier it was 21 years, but now it is 18 years. It was by 64th Amendment in 1989 that it was reduced. Very important, both the questions. What is the age and when it was reduced and by what amendment it was reduced. Administers oath of office to Governor of Indian State. Governor of Indian State को कौन oath दिलाता है? It is the Chief Justice of High Court. President को कौन दिलाता है? It is the Chief Justice of India. Union Territory is administered by the President of India directly. Government of the Territory, Chief Minister, President through Governor is the right answer. Union Territories like that of Chandigarh, Pondicherry, Lakshadweep, Daman and Diu, all of these are centrally administered areas and इनकी relation में provisions कहाँ provide करी गई हैं? Part 8 of the Indian Constitution. You should know this. You should know this. Very important. Reasonable restrictions on fundamental rights can be imposed by who can impose? It is the parliament. Parliament can impose restrictions on fundamental rights, but reasonable. The concept of judicial review in India is inspired by the Constitution of USA. Answer is USA. गाइस सबसे पहले तो जितनी भी हमने चीज़ें बोरो की है ना इधर उधर से वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? नंबर 1. नंबर 2, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यू शुड नो इट. जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट की? टू एग्जामिन द लॉज एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स given by both the central and state government. Central and state government जो orders और ये laws बनाती है, अगर they are violative of the Indian Constitution, the Supreme Court has the power to declare them as null and void, invalid. कह सकते हैं they are unconstitutional and therefore invalid. This power of the Supreme Court is known as judicial review. Very Lakshadweep falls within the jurisdiction of which High Court? Now you will say obviously Lakshadweep High Court. Not every UT or state has its own High Court. Okay, there are states and there are UTs जिनकी जुरिस्डिक्शन दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट्स के पास है और आपको इनके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी इजीली यू कैन रिमेंबर देम, राइट? इसके अंदर लक्षद्वीप की जो जुरिस्डिक्शन है दैट इज़ विद केरला हाई कोर्ट. द आंसर इज डी. लक्षद्वीप की किसके साथ है? केरला हाई कोर्ट के पास है. Which article of the Constitution of India states that all proceedings in the Supreme Court and all the High Court shall be done in English? It is Article 348. Article
348 says so that every proceeding should be done in English, but there is an exception. Agar governor with the consent of the president says that okay, gives the says that authorizes that some other language is to be used in the proceedings of the High Court, then that can be done. Let's read it. Article 348 says language to be used in Supreme Court and in the High Court and for acts, bills, etc. is English. Okay, this is the header that I have picked up. Let's see. The governor of a state may, with the previous consent of the president, authorize the use of Hindi language or any other language used for any other purposes of the state in proceeding in the High Court, right? In the proceedings in the High Court. So governor with the previous consent might allow or authorize usage of some other language in the High Courts, right? Is known as father of local self-government in India. It is Lord, which Lord? Lord Ripon is said to be the father of local self-government in India. इसका आंसर एक और भी याद रख लो. बलवंत राय मेहता committee is very important committee, and it is related to what? It is related to local self-government. It is related to Panchayati Raj in India, and it was the chairman of the 7th Pay Commission. It was Honorable Mr. Justice A.K. Mathur. What is Pay Commission for? It is set up by the Indian government and gives its recommendation regarding changes in salary structure of its employees. Salary structure से related बात करता है Planning Commission, and this was the 7th Pay Commission headed by whom? Honorable Mr. Justice A.K. Mathur. Public holidays are declared under. Okay guys, make a guess. A, B, C, D. कौन सा होगा आंसर? I know most of you would have said Constitution of India. No, it's wrong. It is actually Negotiable Instruments Act that under which public holidays are declared, right? So answer is D, and we'll read section 25. When day of maturity is a holiday. तो basically ये वाले जो explanation है इसके अंदर बात करेंगे. The expression public holiday includes Sundays and any other day declared by the central government by notification in official gazette to be a public holiday. तो गवर्नमेंट किसके अंडर डिक्लेयर करती है पब्लिक हॉलीडे? एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर. रिपब्लिकन स्टेट द हेड ऑफ द स्टेट इज. रिपब्लिक का ऑपोजिट क्या है? इट इज मोनार्क. इट इज मोनार्क. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड मोनार्क? हेड ऑफ द स्टेट का ही डिफरेंस है ना. हेड ऑफ द स्टेट, सबसे पहले इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. वी नो दिस. We know this. If you don't know this, please revise your constitution. You should know this. Head of the state is President of India. और अगर यूके की बात करें तो Queen is the head of the state, right? तो but जो President of India है वो elected होते हैं. Indirect elections होते हैं. Indirect elections होते हैं President of India को select करने के लिए, right? There is an electoral college which is formed. But monarch, Queen, is there any elections? No elections. No election. She is a hereditary head of the state, right? So we are a republic and they are a monarch, and the difference is we have a elected head of the state. So the answer is D. So the answer is D. The Planning Commission has been replaced by whom? Niti Aayog. And now you should know the full form of Niti Aayog. It is National Institution for Transforming India. National Institution for Transforming India. Very important. Please make a note of this. Very, very important. In 2015, this was formulated. It is a policy think tank that was established to achieve sustainable development goals through cooperative federalism. Cooperative federalism matlab central, state and local government would cooperate amongst themselves for the development. Cooperative federalism encourage healthy competition among states. Niti Aayog was established in 2015, replacing the Planning Commission. This is a very important question. Constitution of India was adopted on 15th August 1950, 26 January 1950, 26 November 1949, 1st January 1950. कौन कौन कंफ्यूज हुआ बी और सी में? बी एंड सी में कौन कौन कंफ्यूज हुआ? आज हम ये क्लियर करेंगे. देखो 26 November 1949 is a very important date. What happened on this date? कि हमने कुछ some provisions of Indian Constitution were adopted. कौन से थे वो some provisions? देखो, एक तो था citizenship, दूसरा था elections, तीसरा था provisional parliament, तीसरा क्या था?
प्रोविजनल पार्लियामेंट, बिकॉज हमें इमिजिएटली चाहिए थे ये सब सारी प्रोविजंस. तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ऑल ऑफ दीज वर adopted on 26 November 1949, which was also said to be the law day of India. It is said 26 November is said to be the law day, right? You need to remember, this is also a very important question. Now what happened next? ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन अडॉप्ट हो गई थी, पर आधी अधूरी अडॉप्ट हुई थी. हमने फिर 26 जनवरी को क्या किया? 26 जनवरी को पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करी गई थी. क्यों? तो let's see what happened on 26 January 1950. Basically in 1930 on this very day we said हम पूर्ण स्वराज लेंगे. We will go for पूर्ण स्वराज. पूर्ण स्वराज मतलब complete independence, and this day would be celebrated as पूर्ण स्वराज डे. तो इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी, तभी हमने कहा कि इस दिन हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे. और फिर क्या बना 26 जनवरी? क्या बना 26 जनवरी? रिपब्लिक डे. अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी, बिकॉज कंप्लीट सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. अब इसका आंसर क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी, बिकॉज कुछ तो हमने अडॉप्ट कर लिए थे ना. तो इट वॉज ऑन 26 नवंबर 1949, नॉट जनवरी, इट इज 26 नवंबर 1949. याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको गलत कर कर आते हैं, क्योंकि 50-50 वाले में तो आ जाता है. नेगेटिव मार्किंग में आप कहते हो जो जिसमें 2 ऑप्शंस कट जाएंगी वो मैं अटेम्प्ट कर दूंगी, बट इसमें तो 50-50 करता है, बट हम रॉन्ग वाली अटेम्प्ट कर देते हैं. तो आपने कैसे याद करना है? पहली डेट जो थी उसी को डेट ऑफ अडॉप्शन माना जाता है. अडॉप्ट अ बिल बिकम्स अ लॉ ओनली व्हेन इट इज किससे? ड्यूली पास बाय बोथ हाउसेस, साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर, साइंड बाय द स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साइंड बाय द प्रेसिडेंट. आंसर इज डी. हम कहते हैं ना एसेंट अप्रूवल, ये वाले वर्ड्स यूज किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं तो बिल क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है. मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय. सबसे पहले यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? इट इज एन एब्रीविएशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यू शुड नो ऑल दिस. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. आप कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन कवर करें, ये वाला पॉइंट तो कवर्ड होगा ही. आर्टिकल 320 फंक्शंस की बात करता है इसके, एंड इनका काम क्या है? कंडक्ट एग्जामिनेशंस. व्हाट डज यूपीएससी डू? कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर सर्विसेज, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, सेंट्रल सर्विसेज हो गई, पब्लिक सर्विसेज, ठीक है ना, इन सब के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं. इट इज़ अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यू नीड टू रिमेंबर दिस. एंड ऑल्सो अब इनको इंडिपेंडेंट रखना है तो कौन अपॉइंटमेंट करता है इनकी? इट इज़ द प्रेसिडेंट. देखिए, अगर आप क्रॉस करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपॉइंटमेंट से क्या लेना, चीफ जस्टिस को क्या लेना, ये तो खुद अपना काम करेंगे. तो दे आर अ क्रॉस, सी एंड डी आर अ क्रॉस. प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में से एक है. प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में से हमें पता है कि मोस्टली जो अपॉइंटमेंट्स की पावर है, जिनके हैंड के अंदर अपॉइंटमेंट्स की जितनी भी पावर है, इट इज with whom? It is the president, right? So the answer is B. Answer is B. Source of political authority in India is again a question from preamble. Again a question from preamble. The source of political authority in India is, you should know this, people of India, Constitution of India, Parliament of India, President of India. अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं? ये मार्क कर देते हैं Constitution of India. ये आंसर नहीं है. The source of political authority, source of authority कौन है? कौन? We the people of India give to ourselves, ऐसा बोलती है preamble. So the source of authority are people of India themselves. You need to read preamble and understand meaning. पता होना चाहिए हर word का, because किसी भी word का meaning उठा के वो आपसे पूछ सकते हैं. तो आज ये वीडियो के बाद preamble उठाओ, पढ़ो preamble का टॉपिक, और एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं preamble में से बहुत. The writ of habeas corpus is issued for. What is habeas corpus? These are fundamental rights का टॉपिक है, writs का टॉपिक है. ओके, fundamental rights. Now
व्हाट इज हैबियस कॉर्पस, यू नीड टू नो रिट्स, सारी रिट्स का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता मतलब यू नीड टू रीड रिट्स अगेन। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इशूड फॉर quashing wrongful appointment, compel public authority to perform duty, no quashing legal quasi judicial order against wrongful deprivation of personal body and produce person before court. Answer is D, habeas corpus. Habeas corpus का मतलब होता है to have the body of, habeas corpus, it is very very important। अगर आपको habeas corpus, mandamus इन सब का मतलब नहीं पता है, please go and revise your writs वाला part, you will cover it। and fundamental rights में writs बहुत important है। fundamental rights itself is a very important topic, so you need to know what does habeas corpus means। basically it means to have the body of, right, to have the body of, it is the for the safety of personal liberty when a person is detained। ये order किसको दिया जाता है, जिस पर्सन ने डिटेन किया है दूसरे पर्सन को, उसको कहा जाता है द पर्सन हु हैज डिटेन्ड, टू ब्रिंग द पर्सन इन बिफोर द कोर्ट। देन द बिफोर सी checks whether it is legal, there is any legal justification for his detention। if there is not, then the person is released। okay, so that is what is habeas corpus। parliament has exclusive power to make any law on any of the matters। ठीक है, कब है, देखिए हमें पता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर किया हुआ है सेंटर स्टेट के बीच में, सो दैट देयर इज नो फाइट। लिस्ट्स बनाई हुई हैं, हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट है, हमारे पास स्टेट लिस्ट है, और हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है, पता है ना ये हमें। ठीक है, और इनमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर कौन लॉ बना सकता है, सेंटर गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, बट प्रिवेल किसका लॉ करेगा इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सेंटर का करेगा। ठीक है ना, बट एक्सक्लूसिव पावर, सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर किसकी है, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। तो देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। नॉट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, देखिए अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं दिया हुआ है तो हमारे पास 3 लिस्ट हैं, इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है। स्टेट लिस्ट में हुआ तो स्टेट की पावर के पास हुई, तो ये वाला ऑप्शन तो क्रॉस है। उसके बाद एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, वी कैन कंसिडर दिस। एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अंदर तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं आती है, तो ठीक है ये भी क्रॉस है। एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, उसके बाद तो एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ये भी क्रॉस है, तो हमारा आंसर बी है। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कोर्ट कैन इशू व्हाट, एन ऑर्डिनेंस। ये तो प्रेसिडेंट का वर्ड है, ठीक है, ये तो प्रेसिडेंट की उसमें पाया जाता है पावर्स में। अ नोटिफिकेशन, अ डिग्री, नो, अ रिट। आंसर इज डी, रिट। और किसके अंदर रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर, 32 के अंदर, और हाई कोर्ट किसके अंदर करता है, 226 के अंदर। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, अमेंडमेंट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने। देखिए फंडामेंटल राइट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वायलेट हो जाते हैं, अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। वी कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। दैट फर्स्ट ई कोर्ट is opened at, it is Hyderabad High Court। Constitution of India was formed under the provision of Cabinet Mission Plan। It was formed under the provision of Cabinet Mission Plan। देखिए क्या हुआ था, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस होनी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान को क्यों भेजा था, टू ट्रांसफर पावर। और सबसे पहली चीज जो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए चाहिए थी, वी नीडेड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्टेन लॉज। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो दे वर द वंस who planned cabinet mission plan के through we started the formulation of the constitution assembly। so constitution of India was formed under the provision of cabinet mission plan। Very in the constitution of India, the name of the country is Hindustan, India that is Bharat, federalism Angravat, it is India that is Bharat। article 1 कहता है India that is Bharat is a union of states, India that is Bharat is a union of states, is a union of states। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखना। ये भी आ जाता है कई बार कि यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड नहीं यूज किया हुआ। इट इज जस्ट वी हैव अडॉप्टेड फेडरल फीचर्स, तो हम कहते हैं फेडरल है, बट वी हैव नॉट यूज द वर्ड फेडरल, इंस्टेड यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज किया हुआ है। क्या वर्ड यूज किया हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें पता है इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन।
constitution. It is the lengthiest and the longest constitution. Yes. Constitution of India provides for dual citizenship. No, we have single citizenship. हमारे यहाँ पे single citizenship है. बताया है पहले भी that no one says that I am the citizen of Haryana, I am a citizen of Punjab. We say we are resident of Haryana, Punjab, but citizen तो हम इंडिया के ही हैं. We have single citizenship, no dual citizenship. ये तो नहीं है, ये कंसिडर करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यस, हमारे पास कुछ फीचर्स फेडरलिज्म के हैं और कुछ फीचर्स किसके हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी हैं. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही फीचर है सिंगल सिटीजनशिप, तो हमारे पास दोनों के फीचर्स हैं, तभी हमें क्वासी फेडरल भी कहा जाता है. हम कंप्लीटली फेडरल नहीं है, कंप्लीटली यूनिटरी नहीं है, क्वासी फेडरल हैं. द रूल ऑफ लॉ इज इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी हैव दिस इज करेक्ट. ठीक है, बट ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन सी चीज इज नॉट करेक्ट? इट इज विच वन? इट इज dual citizenship. We do not have dual citizenship, we have single citizenship guys. तो भी मैं कहती हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, तभी मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए, so that you know how to attempt question. Answer is B. In India, a judge of the High Court holds office till he attains the age of. High Court के जज की एज पूछी है. हाई कोर्ट की जज की एज कितनी होती है, कब रिटायर होते हैं? 62 years. 62 years. Doctrine of basic structure of the constitution was evolved by the Supreme Court. Evolved by the Supreme Court, in which case I have talked about this in various videos. You should know it is Keshwananda Bharti case. Keshwananda Bharti case बहुत important है, राइट. इसके अंदर ही कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है भाई, आप फंडामेंटल राइट्स, आप कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते. ओके. Political parties are recognized by very easy. It is Election Commission of India. Election Commission of India recognizes the parties. Political parties recognize करते हैं. Answer is B. The preamble of the Constitution of India states sovereign secular republic. Sovereign secular socialist democratic republic. Sovereign democratic republic. Sovereign secular and democratic republic. The answer is B. Now that is why I say that you should read preamble carefully. 10 times at least read it loudly. जोर जोर से पढ़ो so that आपको वर्ड्स याद रहें और आपको इन सब के मीनिंग भी पता होने चाहिए. प्लीज गाइज, अब आपको पता चल रहा है. अब बार बार पूछते थे दीदी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना चाहिए. इस वाली वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में से उठाए गए हैं, तो यू नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज रिवाइज योर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग. Judge of the Supreme Court is appointed by President of India directly, President of India on the recommendation of the National Judicial Appointment Commission, President of India on the recommendation of Collegium of the Supreme Court, President of India on the recommendation of the Chief Justice of India. Now, normally the question comes, Judge of Supreme Court is appointed by, and the option is given President, Prime Minister and thing like this, but sometimes they go into the depth of the matter, that is like appointment of judges. The judges of the Supreme Court are appointed by the President, no doubt about that, but it is after consultation. You must have read this word somewhere while reading Constitution, ki after consultation with the Chief Justice and other such judges of the Supreme Court and the High Courts, and the High Courts consultation. So what it is called, Collegium of the Supreme Court. So the right answer is C. You need to know the depth of the matter also sometimes, not only upar se, okay. Especially wherein you have a lot of questions related to constitution, जैसे exams like BHU, DU, Punjab University, आपको पता होना चाहिए. Even CLAT people should know the depth of, they should have in-depth knowledge of Indian constitution, okay. A person can directly file a writ petition before the Supreme Court of India for enforcement of fundamental right under Article so and so of the Constitution of India. Very important question. Again writs, again fundamental rights. तभी मैं बोल रही हूँ fundamental rights are very important. जिसने ढंग से fundamental rights नहीं prepare किया है, आज ही fundamental rights पढ़ो. It is the answer to this question is very easy. It is Article 32. It is under Article 32 that the Supreme Court has the power and a person can directly file a writ. And 226 में क्या है? 226 में person can go to the High Court. Which of the following
parts of the Indian Constitution contain fundamental rights? Again, very easy. It is part 3. Part 3 of the Constitution consists of what? It consists of fundamental rights. And part 4 consists of what? It consists of directive principles. And part 4A consists of what? It consists of fundamental duties. Fundamental duties. Fundamental ड्यूटीज याद रखना है। ये सारे 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का आंसर क्या है? आंसर इज सी, ठीक है ना। ये विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देख रहे हो, प्रीएम्बल का एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, फंडामेंटल राइट्स का भी। तो ये दोनों चैप्टर्स पता चल रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा वर्ड है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये तीनों तो यूज किए गए हैं। कम्युनिटी इज द वर्ड विच इज नॉट यूज्ड। एंड क्वेश्चन क्या है? नॉट यूज्ड, नहीं यूज किया गया है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो। आंसर इज डी। एंड कई बार पता है इसकी जगह ये वर्ड भी यूज कर देते हैं, मोरालिटी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज नॉट यूज। मोरालिटी कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है प्रीएम्बल के अंदर। इन इंडिया लॉ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये तो पता होना चाहिए, अभी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया। इट इज 26 नवंबर। इट इज द डे ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। हमने कंफ्यूज किसके साथ नहीं होना? 26 जनवरी, नहीं कंफ्यूज होना 26 जनवरी के साथ, ओके। President of India has similar position to British Queen, American President, German Chancellor, UK Prime Minister. किससे similar position है? Similarity किसके साथ है? बताओ, दिमाग लगाओ यहाँ पे अपना। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट तो वैसे ही क्रॉस हो जाता है, इतनी तो पावर्स ही नहीं है हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंशियल, जब भी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है तो हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं? अमेरिकन प्रेसिडेंट का। पावर्स ही सेम नहीं है, जर्मन चांसलर से भी नहीं है। यूके प्राइम मिनिस्टर जैसा तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ही है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है? ब्रिटिश क्वीन। अब आप कहोगे कि जी उनका इलेक्शन अलग होता है। उन्होंने क्या पूछा है? क्या पूछा है? हैज सिमिलर पोजिशन, पोजिशन सिमिलर टू, पावर्स, ये फंक्शंस कौन से परफॉर्म करते हैं। जैसे ब्रिटिश क्वीन के फंक्शंस है, शी इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट बट शी इज जस्ट अ नॉमिनेटेड हेड, ज़्यादा पावर्स नहीं है, नॉमिनेटेड है। वैसे ही हम कहते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी रियल पावर्स नहीं है। रियल पावर्स किसके साथ वेस्टेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स नहीं वेस्टेड है। तो द आंसर इज ए। बहुत पिछली साइड में बताया था कैबिनेट मिशन क्या था। जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट होना था और ब्रिटिशर्स को पता था कि हमें इनको इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी, तो एक कैबिनेट मिशन आया इंडिया में और उनको क्या करना था? ट्रांसफर करनी थी पावर्स। दे हैड टू ट्रांसफर द पावर, ठीक है। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया था? फॉर्मुलेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। एंड ही हु हेडेड दिस कैबिनेट मिशन? इट वाज सर पी लॉरेंस। Original Constitution of India has how many parts? It has 22 parts, 8 schedules and 395 articles. अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसको पढ़ना भी है। इन्होंने पूछा है ओरिजिनल पूछा है। ओरिजिनल जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग तब कितने थे, ठीक है। करंटली पूछा होता तो आंसर चेंज हो जाता। आपका आंसर होता 25 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स, बट आपके आर्टिकल्स सेम रहेंगे। अब आप कहोगे 395 आर्टिकल्स, एक्चुअल में आर्टिकल्स बढ़ गए हैं बट जितने भी बड़े हैं उनके आगे अल्फ़ाबेट्स लगा दिए, जैसे 51A फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी तो आगे एक आर्टिकल के आगे अल्फ़ाबेट्स लगा दिए, तो एक्चुअल में नंबर चेंज हो गया। मतलब वैसे नंबर नहीं चेंज हुआ, 395 के बाद आगे नहीं बढ़ा, बट अगर एक्चुअल देखा जाए तो चेंज हो गया। तो आपने देखना है कि क्या पूछ रहे हैं। तो आप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट फॉर साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज गिवन अंडर फंडामेंटल राइट्स, नो। फंडामेंटल ड्यूटीज, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, द प्रीएम्बल। दो क्वेश्चंस ये तो क्रॉस हैं, इसमें तो दिया नहीं हुआ, किस में दिया हुआ? फंडामेंटल ड्यूटीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। इंपॉर्टेंट, आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पता होनी चाहिए। कैसे याद करोगे? रीडिंग एंड गिविंग इट शॉर्ट नेम्स दिया करो उनको सो दैट आपको याद रहे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन, इट इज इन द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Anglo-Indian as defined in the Constitution of India means whose father was of a European descent and domiciled in India, whose mother was of European descent and domiciled in India, whose father was of European descent
and was residing in India temporarily, whose mother was of European descent and was residing in India temporarily. देखिए एंग्लो इंडियंस आंसर इसका ए है. The following special powers of the Constitution has been conferred upon the Rajya Sabha. To change the existing territory of the state and to change the name of the state, no. To pass a resolution empowering the Constitution to make laws in the state list and to create one or more all India services, to amend the election procedure of the president, to determine the pension of the president after his or her retirement, to determine the functions of election commission and to determine the number of election commissioners. So answer is B, very important power. The number of judges can be altered in the Supreme Court by, it is by the Parliament. Very important question. It is by the Parliament has the power to alter the number of judges in the Supreme Court. Right now, how many judges are there? When the Supreme Court came into being, there were 8 judges in the beginning, but now there are 34 judges. Again, a very important question that you should know. Of the article of Indian Constitution are the laws infringing the fundamental rights in journal invalid. क्या कह रहे हैं वो? अंडर एक्सप्रेस टर्म डायरेक्ट किस आर्टिकल में बोला हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो लॉज फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे, तभी कहती हूँ वर्ड के मीनिंग्स पता होने चाहिए. अब जहाँ पे जिसको इन्फ्रिंज का मतलब नहीं पता उसका तो ये क्वेश्चन गया ना. चाहे आपको पता भी वायलेट करता हो तो वो का इन जर्नल इज इनवैलिड. कौन सा आर्टिकल ये कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है. आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी के बारे में बात करता है. राइट 19 राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है. 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है. यू शुड नो दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. तभी आर्टिकल 13 ये पावर देता है, तभी हमारी कोई फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता, कोई लॉ नहीं बना सकता है जिसमें हमारी फंडामेंटल राइट्स ही चली जाएं. राइट ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स हैव बीन रिफ्लेक्टेड. ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बट येस इट हैज़ बीन आस्क्ड. आई थिंक ये पंजाब यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए. सिक्योरिंग फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज. ना वो कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, तो हम ये तो गेस कर ही सकते हैं, बट एक्चुअली इज ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एंड promoting cottage industries in rural areas is the right answer. That is B. Which of the following is no more a fundamental right? It is right to property. Without anything ये right to property का ही question आता है. right to property का यही question आता है कि अच्छा अब ये fundamental right नहीं है, तो अब ये कौन से article के अंदर है? It is under article 300A. याद रखना है, बहुत ही important question है. Constitution of India is partially rigid and partially flexible. Rigid, flexible, very rigid. It is partially rigid and partially flexible. Constitution describes India as quasi federal country. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है हमारी? दैट इज व्हाट वी नीड टू टेल. तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फेडरेशन तो वर्ड ही नहीं यूज किया हुआ, क्वासी फेडरल भी नहीं किया हुआ, यूनियन ऑफ प्रोविंसेस भी नहीं यूज किया हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब हमारे देश में से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकती, किसी के पास भी पावर नहीं है, सब एकजुट है, यूनियन है. Constitution की classes. So if you are interested in studying Indian Constitution, then you can contact us on our email ID, that is info.logiri@gmail.com. आप वहाँ पे हमें मेल सेंड कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्स दे देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जो है @IamLogiri. ठीक है, वहाँ पे आप हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं क्लास की. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IamLogiri के नाम से हूँ. वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ
के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ, तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।